مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم اس کی حمد، اس کی ستائش اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے اس کا آخری کلمہ یعنی 7واں کلمہ۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23 باب، اس کی 44 آیت سے لے کر 46 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے اس کلمہ کے بارے میں چند باتیں سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے پہلے حصے کی طرف جائیں گے جس میں لکھا ہے، دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، یعنی سورج کی روشنی جاتی رہی۔ اور بائبل اسکالرس اس ملک سے مراد لیتے ہیں کہ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام ملک، اور پھر بائبل اسکالرس کہتے ہیں کہ ملک سے مراد ہے تمام کائنات پر اندھیرا چھایا رہا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو لے کر، یعنی تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو لے کر وہ باپ کی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا کفارہ باپ کی حضوری میں دیا، یعنی اپنا ہی لہو لے کر وہ باپ کی حضوری میں داخل ہو گئے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 13 آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر وہ ایک سردار کاہن کی حیثیت سے پاک مکان میں داخل ہو گیا، یعنی خدا باپ کی حضوری میں داخل ہو گیا تاکہ ہماری ابدی خلاصی کرائے۔ اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامہ میں، احبار کی کتاب میں مختلف قربانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ایک قربانی وہ ہے جو کفارہ کی قربانی کہلاتی تھی، اور جس کے لیے سردار کاہن وہ قربانی کا خون لے کر وہ پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، اور اس خون کو وہ اس پاک ترین مقام میں وہ انڈھیل دیتا تھا، پیش کر دیتا تھا، تاکہ خدا باپ کا قہر جو بنی نوع انسان کی گناہوں کی وجہ سے ان کا قہر انسانوں پر ہوتا تھا، وہ قہر کچھ وقت کے لیے ٹل جائے، وہ غصہ کچھ وقت کے لیے ٹل جائے، اور ان کو یہ قربانی سال بسال دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس قربانی سے صرف عارضی چھٹکارا مل سکتا تھا، صرف کچھ عرصے کے لیے خدا کا قہر، خدا کا غضب کچھ وقت کے لیے ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر، جو زندہ خون ہے، وہ باپ کی حضوری میں چلے گئے اور انہوں نے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمارا نجات دہندہ بلکہ وہ ایک اچھا سردار کاہن ہے، جو ہماری خاطر اپنے خون کا کفارہ لے کر، اپنا ہی خون لے کر وہ پاک مقام میں داخل ہو گیا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں
लूका की अंजील में से 44 आयत का दूसरा हिस्सा। और फिर लिखा हुआ है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। तो इसके लिए हम देखेंगे इफसियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 12 से 15 आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूंगी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिससे हुक्म जाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। खुदा के पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो मकदस का पर्दा बीच में से हट गया, इसका मतलब है कि गुनाह के सबब से बनीनो इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार थी, वो दीवार यीशु मसीह ने अपने खून के कफारा देने के सबब से वो दीवार गिरा दी गई, हटा दी गई और बाप से हमारा फिर से एक दफा मिलाप करा दिया। इसके लिए भी हम जितनी खुदा की शुक्रगुजारी करें वो कम है। लिखा हुआ है कि पहले हम दूर थे, अब मसीह यस्सु में उसके वसीला से हम बाप के नजदीक हो गए हैं, और अब हम उसको यीशु मसीह के वसीला से ऐ बाप कहकर पुकारते हैं और दुआ करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। फिर हम देखते हैं 46 आयत में, लूका की अंजील 46 आयत का दूसरा हिस्सा। फिर लिखा हुआ है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, यानी यीशु मसीह बड़ी जानकनी की हालत में थे, दुख की हालत में थे और जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने पहला कलमा से लेकर 7वें कलमा तक बयान किया है, तो यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर हर कलमा कहा है, ताकि हर एक इंसान जो वहां मौजूद है वो उसके कानों तक ये आवाज पहुंचे और वो गवाह हो। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पूरे होशो हवास में ये सारे कलमात कहे, जिन पर हम ईमान रखते हैं, और इन कफारा के कलमात को हम हर साल सीखने की कोशिश करते हैं, ताकि खुदा उनके हम और नजदीक जा सके, खुदा उनके मोहब्बत के भेदों को हम जान सके। क्योंकि इंसान होते हुए इंसानी अकल से हम कलाम मुकद्दस को नहीं सीख सकते। इंसान की अकल से हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जान सकते। इसके लिए जरूरी है कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे, हमें सिखाए, तो हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, उसकी मोहब्बत को जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से ये कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा बाप के हाथों में सौंपते हैं। सौंपने का अगर हम मायने देखें तो सौंपने का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज अमानत के तौर पे देना, या हम किसी को कुछ वक्त के लिए कोई भी अपना कीमती हिस्सा या कुछ भी हिस्सा देते हैं और उसको हम वापस लेने के मिजाज होते हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान 3 चीजों का मुरक्कब है, यानी रूह, जान, बदन। रूह, जान, बदन।
क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम पुराने अहद में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। तो हम देखते हैं कि इंसान जो बना है वो बदन है, उसके अंदर उसके साथ खून है और रूह है। ये तीनों चीजें मिलकर इंसान को एक इंसान जो है वो मुकम्मल उसकी एक शख्सियत बनती है, एक पर्सनैलिटी बनती है। इन तीनों चीजों में से अगर एक भी कम हो जाए तो वो इंसान जिंदा नहीं रहता। अगर सिर्फ रूह हो और बदन और खून ना हो तो वो इंसान जो है वो वो रूह के साथ इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं करता। और अगर सिर्फ बदन और खून हो तो और रूह ना हो तो भी वो जीती जान नहीं होता। इसी तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरी डोरी कभी नहीं टूटती। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, यानी रूह की, जान की और बदन की। हम देखते हैं कि जब कोई शख्स जब इस दुनिया से रहलत करता है तो उसके बदन को तो जमीन में दफना दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है या उसको बर्न कर दिया जाता है, लेकिन रूह आलम अरवा में जमा हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने ये सातवां कलमा यूं अदा किया। उन्होंने फरमाया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। हाँ, बाकी इंसानों की रूहें तो आलम अरवा में जमा होती हैं, चाहे वो इंसान जो है वो ईमानदार हो, वो मुकद्दसीन हो, या फिर वो गुनहगार हो, बदकार हो। तमाम रूहें आलम अरवा में जमा होती हैं। और फिर कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जब वक्त मुकर्रा पर वो जब यीशु मसीह की आमद सानी होगी तो ये रूहें अपना अपना बदन लेकर उसकी हुजूरी में पेश होंगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह को आलम अरवा में नहीं बल्कि उन्होंने बाप के हाथों में सौंपा ताकि वो उसको वापस ले सके। खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए ये कफारा देकर हमें असल नो खुदा की हजूरी में ला खड़ा किया है। उसके जलाल में हम आ गए हैं और बाप के साथ हमारा मेल करा दिया है। हम इसके लिए जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है। आखिरी इस कलमा के आखिरी हिस्सा को हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, और ये कहकर दम दे दिया, यानी उन्होंने इस जहाने फानी से उन्होंने जो है वो रुखसत पाई, रहलत फरमाई, और वो सलीब पर कुर्बान हो गए। उन्होंने सलीब पर अपनी जान दे दी। और हम देखते हैं कि इसके सियाको सबाक में अगर हम जाएं तो इसका मतलब है कि ये कहकर दम दे दिया, यानी जिस ग्रेट मिशन को वो करने के लिए इस दुनिया में आए थे, इस दुनिया में यीशु मसीह ने अपना इंसानी रूप अपनाया था ताकि वो इंसान का कफारा दे सके। तो जब उन्होंने ये जिम्मेदारी खत्म की, जब उन्होंने बाप की फरमाबरदारी के साथ ये ग्रेट मिशन को कंप्लीट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। यानी उनका जमीन पर आने का जो मकसद था, जो कफारा का मकसद था, वो तमाम हुआ, वो तमाम हुआ। और हम देखते हैं कि इस सारे कलमात से खुदा ने हमें ये पैगाम दिया कि उसने हमारी जानों का कफारा दे दिया, हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की इस सलीबी मौत से बाप के साथ हमारा फिर से मिलाप हो गया। अब हमारा फर्ज है कि हम खुदा यीशु मसीह की इस गहरी मोहब्बत को, इस उसकी ऊंचाई को, गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें, और उसकी गहरे मोहब्बत के मुकाशफा को हम जाने, और इस मुकाशफात को हम जानकर ये कलाम की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाएं कि हमारे तमाम गुनाहों का कफारा दिया जा चुका है,
اور اب ہمیں ابدی خلاصی مل گئی ہے، اور اب ہم گناہوں سے رہائی پا چکے ہیں، اور اب ہم خدا کی حضوری میں اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور اس کے جلال کو اپنی زندگیوں میں ظاہر کریں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔